ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 58 GB ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੁਣ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਦਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਚੰਨਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜੱਕੋਪੁਰ ਖੁਰਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਕਿਰਨ ਪਵਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
सहज सहज गुण रवे कबीरा। खंडा ब्रह्मंडा के मालक जुगो जुग अटल धन 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 दसा पातशाहियां की जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का हजूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर उच्चिया सिंहासना से शोभनीक होकर सतगुरु जी संतां नूं दर्शन दिदारे बख्शिश करके निहाल कर रहे हैं। सतगुरु जी का पुटान कोट धन्यवाद है। सतगुरु जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा साहिब के गुरु घर के प्रीतवान साढ़े सत्कारयोग माता जी माता कुलबीर कौर जी गुरप्रवासी माता कुलबीर कौर जी पत्नी हेडमास्टर सरदार चरण सिंह जी जो कुछ दिन पहला माता जी प्रवाह में संसार में सदीवी विछोड़ा दे गए। विछड़ी आत्मा के विरुद्ध समूह परिवार वालों मिल करके इतना दे बिटे सरदार इंद्रजीत सिंह जी मास्टर कमलजीत सिंह जी नौ राणियां रबजीत कौर जी बेटी परमिंदरजीत कौर जी बेटी नंदरजीत कौर जी दमाद सरदार जसविंदर सिंह जी खिंदा सनैचा दमाद सरदार बलविंदर सिंह जी मुंबी सैदपुर पोते हर्षदीप सिंह जी दमन सिंह जी कनेडा वासी पोती किरण और कनेडा बहुत बड़ा बाग परिवार माता जी का साथ संगत साढ़े सत्कारयोग जी प्रिंसीपाल सरदार केवल सिंह जी क्योंकि इस परिवार नाल सांझ उन्होंने भतीजा इस घर के ब्याह होया सैदपुर बड़ी बारी असी उन्होंने रह के कीर्तन किया। उस इलाके साढ़े बहुत ही महापुरुष संत करतार सिंह जी कट्टे परिवार उन्होंने जो ना ही लेते हैं के अंदर एक ठंड की पैंती है क्योंकि दुनिया के संत महापुरुष बड़े हैं सारे सत्कारयोग ने पर कई बारी सतगुरु जी जो बाणी पढ़ते थे सतगुरु जी निर्णय भी कर देते हैं कि जिन मर्जी ना मत्थे टेकी जाए। सतगुरु जी ने गुरबाणी में उस शहर का नाम लैके जिथे खड़ है संतां का उन्होंने जिक्र करके कबीर साहब जी कहते गंज साढ़े तै धोतियां तेरे पान तब गली जिन्हें जब मालियां लुटते हाथ नबाग कोई हर के संत ना आखी है बनास के अब उन्होंने ठग कह दिता भी किसी चोड़ा पा के किसी ने लेख के उसकी भावना ना बना लियो। जिथे साध संगत नाम जपण वाले संत की गल आती उत्थे महाराज ने कह दिता संत शरण जो जन परे सो जन उदन हार संत की निंदा उनका और बहुत अवतार। तो मैं महापुरुषों का इस करके जिक्र किया उन्होंने हजूरी में भी बड़ी बारी कीर्तन करने का समा मिलिया। फिर श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब उन्होंने बस जो सालाना उत्थे जोड़वे का बुलाते अखरते भी हाजरी भरवाई। तो सात संगत उस इलाके को सैदपुर को प्रिंसीपल सरदार केवल सिंह जी ने हुक्म किया है बहुत ही प्यार में बैठ के मेरिया भैन बीबियां बच्चियां वीर बुजुर्ग गुरु चरणों में बड़े प्यार नाल हाजरी कर रहे हो क्योंकि कीर्तन एक भक्ति है। कीर्तन करना भी भक्ति है कीर्तन सुनना भी भक्ति। जे बार बार कहा जाए चुप का दान बख्शिश करो फिर भक्ति नहीं रही। इस करके कहने की जरूरत ही नहीं पई। तो विश्वास में बैठे बाप जी जब इधर संगतां बैठ के कीर्तन श्रवण करदियां उस संगत नूं कह दिता कल चुक मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए लिया गुरमुख जपिए लाए लिया ना अपनी गुरमुखां की बैठ के हर दस कीर्तन श्रवण कर रहे हो। तो सत संगत एक समा भी इदा का होंदा
पड़ोसी के जो हुआ तो अपने भी जहान। हर बंदा जो गुरु घर आके किसी विछड़ी आत्मा को श्रद्धा के फुल भेंट करता, जहाँ जो शमशान घाट में जाता, कब्रस्तान में जाता, हर बंदे को मौत चेते आने लग पैंदी कि एक दिन मेरी बारी भी आ जाए। और साथ संगत करोड़ों विचों कोई एक होगा, चाहे कोई कीर्तन करने वाला, चाहे कथा करने वाला, चाहे कोई सुनने वाला। करोड़ा कोटन में नानक हो नारायण के चीफ, जिन्होंने हमेशा ही मौत याद रहती। असं कीर्तन करने वाले स्टेज पर जरूर कहते हैं, पर कोई भागा वाला होगा जिन्होंने हमेशा याद रहती होगी। ये दोनों का समेल है मौत का ते परमात्मा का। जिस व्यक्ति को मौत चेते रहती वो परमात्मा नहीं भुल सकता, उनको परमात्मा याद नहीं करता। इस करके सात संगत आप जिन्ना चिर से बैठे हैं सारे रब चेते मौत याद है। गले ना ही करे फैल पकड़ संसार। सतगुरु जी ने एक जुगत देती आपको कि कीर्तन राही सच्ची सरकार के चरणों में बेनतियां करनिया। सच्ची सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप सारे पंचायत के रूप में एकत्र होकर माता जी को श्रद्धा के फुल भेंट कर वास्ते एकत्र हुए। बहुत सारे आप जी पढ़े लिखे हो, सत संगत हुक्म है थोड़ी जी विचार ही करनी है। इस करके आप जी बहुत सूझवान सारे मेरिया भैन बीबियां बुजुर्ग सारे धन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने एक मर्यादा समझाई आपको श्री गोविंदवाल साहिब। जो शरीर रूपी चोड़ा बदल लगे ना महाराज जी, महाराज ने सारे परिवार को एकत्र करके संगत परिवार नहीं बुला लिया। महाराज कहते साढ़े लागे लागे आ जाओ, तो कुछ बचन करने। संगत आ गई, परिवार आ गया। महाराज का पड़पोतरा भी बैठा परिवार के पड़पोतरा बाबा सुंदर जी, जिन्होंने गुरबाणी सत बाणी 6 पौड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पड़पोतरा साहिब। उन्होंने देखिया कि पड़दादा जी बड़े प्यार संगतां को उपदेश देने लगे ने, चेहरे से वखरा ही मूड है। अज पहला भी बड़ा मूड होंगे, पर अज कुछ कहना चाहोगे जो कुछ कहणगे मैं नोट कर लैना। उन्होंने कलम कागज दिया जवाब। गुरु अमरदास महाराज कहते साध संगत जी अज ध्यान नाल वचन सरवण करियो, क्योंकि संगत नूं ते परिवार नूं कुछ समझो। संगत नूं उसको भी बात संगत हाथ जुड़ गए, प्यार नाल सुन लग पईयां। महाराज कहते साध संगत जी इस संसार में जिहड़ा भी पैदा होया किसी रूप में भी इंसान ने चाहे वो किसी रूप एकदम ने चले जरूर जाना। वो साडा समा भी हम आ जाना सी शरीर रूपी चोला बदलना। ते तुसी सारे ने गुरु रामदास महाराज, क्योंकि महाराज जी 2 पुत्र सी ते 2 धीआं। साध संगत 2 दमाद भाई रामा जी ते साध संगत धन धन गुरु रामदास जिन्होंने जेठा जी टैक करा वो भी कोल बैठे। ते परख विच गुरु रामदास महाराज पूरे उतरे से इस करके उन्होंने गुरता गति देने लगे। कहते सारे ने इन्होंने गुरता टेका। सतगुरु जी उपदेश देने लगे, कहते साढ़े जान तो बाद कोई रोयो ना। और सतबाणी सतगुरु जी ने जो हुक्म किया, सतगुर भाने अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं भूल ना पाया। कहते साढ़े जान तो बाद कोई रोयो ना, बस कहन की देर से असी चले जाना, शरीर रूपी चोला छड़ जाना। उस वेले विराग में आ गई संगतां रोन लग पई। महाराज कहते भाई तुहानूं कुछ समझाउण लगे सी, तुसीं ते विराग में जा गए रोन लग पए। एक गल याद रहे, रोना ते विराग आउणा इहदा बड़ा अर्थ वखरा है। हुण एक हुंदा दुनियावी रोना, कई बार बंदे ते सट लग जाए, शरीर के उत्ते जख्म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा रोंदा ही। साध संगत कई बार बिजनेस घाटा पै जाए तो रोंदा। महाराज कहते माटी को पुतरा कैसे रचता है, देखे देखे सुने बोला है, दौड़ो करता है जब पिछ पावे तब गर्व करता है, थोड़ा जब मान सम्मान मिल जाए तो बंदा कहना मेरे वर्गा तो दुनिया तो बंदा है, जे मैं ना इतने होंदा तो काम चलना नहीं सी।
कहते जे किते नुकसान हो जाए माया गई तब रोवन लगता है। और जो कुछ आप वेखते सारा माया का पसारा, सत संगत सारा माया का, कले पैसे की जो भी कुछ लेते बस फिर जेड़ा जिन्होंने बंदा अपना समझ लेता थोड़ा नुकसान होने तो रोन लग पैदा। क्योंकि जदों मीरी पीर के मालक हरगोबिंद साहब महाराज जी माता गंगा की चढ़ाई कर गए, सचखंड को बयाना कर गए, तो बिल्कुल विमान से आ रहा है। मीरी पीर के मालक हरगोबिंद साहब महाराज जी ने माता जी के विमान के उतों चेहरे तो कपड़ा पीछे करके महाराज चेहरे वालों तक के हरगोबिंद साहब महाराज जी ने माता जी का मत्था चूमिया, मत्था चुम के फिर खपन चो बाहर हाथ कटे, ये सात संगत फिर हाथ चुमे ते बराब विच आ गए। ते कोल संत साईं दास जी खड़ोते सी, वो कहने लगे महाराज जदों बाबा कटाला की चढ़ाई कर गए सी तुसी सारियां नूं रोकिया भी रोवो ना, बरात ना आओ, ते तुसी सानू सगत किया सी दो लकीरां खिचो, असी लकीर खिची फिर कहता ढा दिओ, तुहाडे हुक्म नाल लकीर खिची फिर ढा दित्ती, ते फिर तुसी कहा सी सानू कि लकीर खिचण नाल तो खुशी मिली। ते महाराज मैं कहा सी महाराज तुहाडा हुक्म होया लकीर खिच दित्ती। कहते जो लकीर ढाउण वास्ते कहा कहते उदों कहता महाराज तुहाडी हुक्म होया, कहते कि ये शरीर रूपी लकीर पैदा हुई सी साडा पुत्र बन के आए अकाल राय जी, ते इस करके हुक्म नाल लकीर रूपी बाबा अकाल राय जी चढ़ाई कर गए ते खुशी खाधी ते गमी खाधी। कहते महाराज उदों सानू समझाया सी पर अज वराग विच क्यों आ गए। भरी संगत विच मेरी पीर दे मालक हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे साईं जी मैनू अज हुण एक एक पल चेते आ रहा मां दा, कदी मां क्योंकि सतगुरु ने हाथ चुमे मत्था चुमिया फिर पैर चुमे, कहते इन्हां चरनां दे नाल तुर के वीर साहब बाबा बुढ़ा साहब जी कोल जदों माता जी पुत्र की दात वास्ते भाव साडे वास्ते कहते गए हो किन्ना तन उत्ते घटा मिट्टी इन्हां चरनां नाल चल के गए, इन चरण तां चुमे, इन्हां हत्थां नूं मैं तां चुमिया भी कई वारी मेरे मुंह विच उन्होंने मैनू चूड़ियां खिलाइयां ते मत्था इस करके चुमिया मेरा ते दिहाड़ी विच मां कई बारी मत्था चुमदी, सचमुच मापे दे कर। हुण देखो ये भी एक वराग दा पक्ष है। ते साईं दास जी ने नमस्कार कर दी महाराज सचमुच कहते जो कुछ हाँ असीं मां करके इसे तरह कलगीधर पातशाह गुरदेव जी का एक वचन, क्योंकि अज आप मां की मिट्टी याद जुड़ बैठे ते साध संगत जो कलगीधर पातशाह गुरदेव जी ना राय कले के कोल बैठे ने, कहते राय कले जाओ कोई सरहंद बंदा भेजो माता जी का ते छोटे साहिबजादियां की खबर लेके आवे। उन्हें अपने नौकर नूं भेजिया जिन्हों जिहदा नाम सी नूरा ते मच्छियां चारदा सी तां उहदा नाम नूरा माही कह के नूरे नूं भेजिया सरहंद। उन्हें जो खबर लेके वापस आया ते सतगुरु जी को आउंदे नूं पुछदे ने चाच मेरे संगतां राय कल्ला दी कोल है। सतगुरु जी कहते नूरे आ गया, नमस्कार की महाराज आ गया, कहते दस फिर उथे साहिबजादियां दा हाल सुना, माता जी का हाल सुना। पवा जानी जान सी सतगुरु जी घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर शान दिल दियां जानते सन फिर भी पुछदे कहते दस बड़े तो साडियां अखां दे सामने असीं आप मैदाने जंग चमकौर साहब के जंग विच भेजिया ते जदों जंग मैदाने शहीद होए ते जकारे छड़े सी सतगुरु जी भाई दया सिंह ने आख्या सी जकारे छड्डो, पर अज सतगुरु जी कहते साहिबजादे छोटे साडे नाल नहीं सी, उन्हां दा हाल सुनाओ। ते नूरे माही कोल बोलिया नहीं जांदा, बड़ा यतन करदा पर गल भर जाता विराग नाल। सतगुरु जी कहते की गल तूं ते बड़ा विरागी हो गया, दस झटपटी जबान नाल कहंदा दादिया दसां की
ਜ਼ਾਲਮ सरकार ने साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता, वो के शहीद किया। 3 पेशियां होईयां। सतगुरु जी कहते अच्छा 3 पेशियां होईयां, तू ये दस जदों पेशी हुई उन्होंने जाके सलाम ते नहीं की, डोल के नहीं गए, फिर भी दिलत की आवाज नाल कहंदा दातिया डोलना ते की सी। जदों तेरे साहिबजादे कचहरी अंदर दाखिल होए उत्थे उन्होंने कोई फतेह बुलाउण वाला ते नहीं सी, पर एक दूजे वाल मुख करके ते उन्होंने गज रख के फतेह बुलाई। महाराज बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। फिर दूजी पेशी, फिर तीजी पेशी, फिर साहिबजादियां नूं नीहां विच सिर के शहीद करन दा हुक्म कीता। दीवार डिगी ते सतगुरु जी कहते फिर कहते समाणे दे रहण वाले शमशर बेग ते बाशर बेग ने उन्हां दीयां छातियां ते गोडे ला के ते छुरीआं नाल जगह कीता। सतगुरु जी कहते अच्छा दलेरी विच सतगुरु दे चेहरा दागण लग पिया। इदा महाराज शहीद किया ते महाराज कहते हुण माता जी का दसो। कह दिता दादिया साहिबजादियां तो बाद दुश्मन बाद अनहोनी दुश्मना ने बुरज तो ठंडे बुरज तो सिट के उन्होंने शहीद कर। सतगुरु जी के नेत्रों विचों हिदर का गर्म गर्म जल अखां रही सोमा बड़ फुटिया, 2 आंसू डिग गए। ते भाई दया सिंह जी कोल खलोते सी, कहण लगे दादिया आप जी तो सानू यही हुक्म करते सी, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवना। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों जै जै रखे आप ते जाए खलोवना, नाम तेरे के रंग दुर्लभ धोवना। जप जप तो निरंकार भरम को खोवना, अंतर बाहर एक नैन अलोवना। जो तेरे रंग रत्ते से जोमना जोमना, जिनी पिछड़ का हुक्म तिन कदे ना रोवना। जिन्हें हुक्म दी नाम दी शब्द की पहचान कर लियो महाराज रोंदा नहीं। सानू यही उपदेश दिता आप जी, नाम तेरे का रंग दुर्लभ धोवना, जिनी पिछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। नाम नानक बख्शीस मन माहे रोवना। कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी कहते भाई दया सिंह जी चमकौर साहब के जंग अंदर सी, आप साहिबजादियां नूं तोरिया सी। छोटे साहिबजादियां ने ऐन अपने दादे की पग नूं दाग नहीं लगन दिता, पर जदों हुण माता की गल आई है इस करके बरात आ गया कि अज जो कुछ भी हाँ माता जी का करके, माता गुजरी का करके। क्योंकि मैं तो 9 साल का सी जदों दिल्ली तो भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर पिता गुरु का सीस लैके आए सी। ते इसे मां ने कहा आख्या स्वामी पार्टी निभ गई है मेरी निभा, सेवक की ओट निभ ही प्रीत। इस करके कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी कहते ये मां का एक एक फल मैनूं चेते आउंदा। क्योंकि जदों कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी किते भी घरों तुरदे सी ते मां की अगवाई लैंदे सी, मां की सलाह लैके उत्थे ते श्री आनंदपुर साहिब सब तो ज्यादा समा बतीत किया, जिथे सीसगंज गुरुद्वारा साहिब, जिथे एकता दिल्ली है ना, जिथे महाराज जी ने चांदनी चौक में सतगुरु ने शहीद किया। सत संगत प्रतापगंज गुरुद्वारा साहिब जिथे घर का सत्कार होया, जिथे सीस का श्री आनंदपुर साहिब उत्थे भी सीसगंज गुरुद्वारा साहिब। उत्थों जदों तुरते सी महाराज उस स्थान से नमस्कार करके मानो पिता का सत्कार करते। अज कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी राय कले दे कोल खलो के ते नूरे माही कोलों सुन के ते भाई दया सिंह नूं कहंदे इस करके दया सिंह जी ये कोई सानू माता जी दे बोल की चेता नहीं होना, ते बरात आउणा एक पल होना दा चेते आउणा। क्योंकि गुरबाणी विच भी 3 किस्म का रोण का जिक्र किया। एक रोना है दुनियावी। हुण देखो पिछे अज तो 30-35-40 साल पिछे लै चलो सुर जिहड़े ते गुरमत नाल जुड़े सी हुण ते बड़ी सोची हो गई। जदों किसी के घर विच मौत हो जाती सी ना, विरले परिवारां नूं छड्ड के साध संगत जदों मौत हो जाती सी कीर्तन नहीं सुनते। कहते एक घर का जी चले गए ढोलकी शैने काहदे वास्ते,
कीर्तन काहदे वास्ते। पर जिवें जिवें सोची आई भी कीर्तन तो बहुत जरूरी है। साध संगत सोची आई फिर जिवें सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने जिहड़ा बचन कीता सी, सतगुरु भाणे अपने बह परवार सखाया, मत मैं पिछे विलोक सी सो मैं मूल न पाया, विद पैंजे विद विकसै जिस विद की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे, सतगुरु प्रतख होंदे बैराज आप पाया, सब सिख बंधुक पुत भाई रामदास पैरी पाया, अंते सतगुर बोलिया की बोले सतगुरु जी मैं पीछे कीर्तन करे हो नरवान फिर हुक्म करके गए। फिर एक मर्यादा बन गई। तो साध संगत मैं जिन्ना गुरमुखा का नाम लिया सी सरपंच सरदार अजीत सिंह जी, सतगुरु ने इहो जिहा व्यक्तियों वास्ते गुरबाणी में इको टोप में दो प्रमाण दे दिते, कहते सब इकट्ठे हुए आया, आप सारे आए संसार चले भी सारे ने जाना, सब इकट्ठे हुए आया घर जासन, वाट बटाया वाट कहते रस्ते में सारे ने आप अपने रस्ते पै जाना, पर जेड़ा कोई नेक काम करता महाराज कहते सब इकट्ठे हुए आया घर जासन वाट बटाया, गुरमुख लाहा लै गए मन चले मूल गवाई। तो साध संगत सतगुरु जी के आप हजूरी में बैठे हैं, एक अपने आप को बड़े बड़े भागों वाले समझिया करिए कि आप गुरु नानक नाम लेवा गुर से पाते हैं, इतनी बड़िया भागों की निशानी। महाराज कहते मैं मूल की केज बात है कोट प्राची तरया रे, गुरु नानक जब सुनिया देखिया से फिर दरवासना से फिर दरवासना भरिया। कहते जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गुरु नानक साहब के दर्शन किए हों, आप गुरु नानक साहब के दर्शन नहीं किए पर वड्डिया भागों वाले पर दसा पातशाह की गुरु ग्रंथ साहब महाराज मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब महाराज 11 पातशाह के दर्शन कर महाराज कहते जिन्हें नाम सुन लिया गुरु नानक साहब महाराज का फिर वो टेटियां चुना नहीं करते। मैं मूर्ख की केत को बात है कोट परा की तरया रे, गुरु नानक जब सुनिया पेकिया से फिर वासना भरिया। तो समा इजाजत नहीं दे रहा, एक सिर्फ वचन करके साथ संगत में बड़ी बारी ये बेनती करता हूं जदों कोई पिछड़ी आत्मा शरदा के खुदा पर भेंट करते हैं गुरबाणी राही, मैं बेनती करता हूं जिन्हों के माता पिता जिउंदे हैं उन्होंने रज के सेवा कर लेनी चाहिए, बाद में पछतावा ही रहे कि मैं क्यों नहीं सेवा की। धन धन गुरु रामदास महाराज कहते काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जड़े वडीरे तुम हो तिन सिर झगड़त पाप। जिहड़ा माता पिता नाल झगड़ा करदा कहते बहुत बड़ा पाप करदा। कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी का एक वचन सुना के ताकि जिहड़ा हुक्म होया भगतां दा सत संगत उस इतिहास नाल जुड़ जावे। कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी श्री अनंदपुर साहिब रहंदे सी कि हर साल गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिहाड़ा मनाते थे। दूर दरेडे तो संगतां पहुंचदियां सी, लाहौर तो संगत आउंदी सी। लाहौर के रहने वाले सरदार बलवंत सिंह गुरुवाड़े निहंग सिंह के बाणे में रहते थे, वो भी हर साल आते शहीदी दिहाड़े। 3 साल लगातार पहुंच ना सके कि कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी जो 3 साल बाद आके उन्हें मत्था टेकिया, संगत बैठी सी ते कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी कहते सरदार बलवंत सिंह जी उन्हें हाथ जोड़ ले, महाराज हुक्म करो। कहते तुहाडे 3 नागे हो गए, 3 साल तुसीं लगातार नहीं आए। कहता दातिया मैनूं माफ कर दिओ, सचमुच मैं पहुंच नहीं सकिया। सतगुरु जी कहते ये दसो कि क्यों नहीं आ सके, क्यों नहीं आए तुसीं, की मजबूरी सी। सरदार बलवंत सिंह जी भरी संगत में हाथ जोड़ के कहता दातिया मैं माफी चाहना। महाराज कहते तो सुन ली गल, पर क्यों नहीं आ सके। इस सरदार बलवंत सिंह जी कहने लगा दातिया मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हो चुके ने, उन्होंने मेरे तो बिना कोई घर में सेवा करने वाला नहीं, इस करके महाराज जी मैं तां नहीं पहुंच सकिया।
मैं माफी चाहूँ। सतगुरु जी कहते अच्छा तेरे तो बिना उन्होंने कोई सेवा करने वाला नहीं। कहते नहीं महाराज हम जो बचन सतगुरां ने कहा बड़ा कीमती अपने सारे के काम आने वाला। कलगीधर पातशाह गुरुदेव जी उच्ची आवाज में कहने लगे सरदार गुरबंत सिंह जी जे तुहाडे तो बिना तुहाडे माता पिता जी कोई सेवा करने वाला नहीं फिर तुहानू आनंदपुर साहिब आने की लोड़ नहीं। तुहाडे ते घरे श्री आनंदपुर साहिब। भाई गुरदास जी कहते ने मां प्यो पर हर सुने वेद भेद ना जाने कथा कहानी। कहते घर च माता पिता बजुर्ग होण ते ओ मंगण कोई चीज भी मैनूं दवाई दे दे ते पानी चाहिए ते कवे नहीं मैं ते गुरुद्वारा साहब चलिया मैं ते शबील लगनी है शहीदी दिहाड़े दी गुरदुआरे दे शबील लाउण चलिया। साध संगत होदा दसो काहदा की फायदा। घर विच बड़े तीर्थ बैठे ने साध संगत हाँ जाओ जो बुजुर्ग हो जाते हैं महापुरुष सिर्फ 5-7 मिनट उन्होंने पाना वाल बैठ के मंजे से इन्ना ही पूछ लिया जाए पिता जी माता जी तुम ठीक होना। कहते पुत्र पहला तो ठीक नहीं से हम जो तू कोल आके बैठा ना हम ठीक क्योंकि ना तो उन्होंने बहुत कपड़िया की लोड़ होती है उसके लाउन पाउन से बड़ा खिंच जाते भी केड़ा हम क्योंकि शरीर बुजुर्ग हो जाता है ना बहुत खाते पीते सेवा उन्हें कितनी कितने करानी होती बस यही कितने माता पिता के कोल बच्चे आके बैठ जान इस साथ संगत बस फिर उन्होंने अंदरों ऐसिया असीसा निकलदियां जिन्होंने गुरबाणी में कह दिता जिस सिमरत सब किलविक नासे पितरी होए पधारो सो हर हक कम सद ही जब हो जाता अंतना हारो पिता माता की असीस निमुख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। आओ भक्ता श्रवण करिए रब तेरा तेरे कोल जिना चर मापे जो वेखी किते गवाना बैठी सिर तो ठंडिया शामा गई प्यार बापू दा मुल नहीं मिलना नमा दिया मिलन दुआवा गई। वेखी किते गवाना बैठी मत ठंडिया शामा गई प्यार बापू दा मुल नहीं मिलना नमा दिया मिलन दुआवा गई। दिल पुछिया ए नादा जाने दिल पुछिया ए नादा जाने तेनू कितना जो देने रब तेरा तेरे
ਜਿਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣੀ ਮਾਂ, ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਧੇਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਏ ਸਰਾਉਂਦੀ ਸੈ, ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਗਿੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਮਾਏ ਖੀਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ, ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੇਚਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਓ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ।
बचन थोड़े सख्त है पर है गुरबाणी कुछ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਖਤ ਬਚਨਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੁਪਰ ਸਵਾਨ ਨਾਥ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸੂਰ ਸਮਝੋ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। एक भगत भगवान जिन प्राणी के नाहे मन, जैसे सुख स्वान नानक मानो ताहे। आप जी गुरु चरणों में सारे नाम जपते हो, वाहिगुरु सारे कहते हो, पर संगत में जपिया सत संगत नाम जपण वाले दसदे ने कि मन की अकाग्रता हो जाती है, मन टिक जाता है। इस करके सतगुरु की बाणी एक तो आप मिश्री आत्मा श्रद्धा के गुर भेट करने सारे होंगे, किसी भी रचना नानक औसर बता पा। ये मात्र बहुत बड़ी एक चेंज है। आप सारे थे इस मेले को देखने वास्ते बाल वचन तम भेरिया मत लते लेंदे फेरिया लेते पंज जवान में गुरथापी दी खंड की। जेड़ा बंदा गुरु वाला बन के खंडे वाटे बहुत प्राप्त करके सेवा समर नाम जपेगा, महाराज कहते उन्हें फिर पंजा ढा लेना। काम करो लोग ओंकार बात वचन तमक भेरिया मन लते लेंदे फेरिया निहते पंज जवान में गुरथापी दी खंड। कीर्तन करते हैं, कुछ को विचार करते हैं, कोई ऐसा वचन मुंह से निकल गया हो सतगुरु जी को, सतगुरु जी साडी नवाजी साध संगत को तो ला चुका लिखवा चाहने सत्कार जो अमृत प्रवासी माता कुलवीर कौर जिन्हों ने लिखी जहाँ सतगुरु जी विछड़ी आत्मा में सुख चढ़ना वास बख्शिश करन। पिछे परिवार के भाना मनन की विछोड़ा सहन की ताकत बख्शिश करन। परिवार में सुख शांति देशा पते संचर दी कला गुरु बख्शिश करन। और दो वचन मेरे नाल सारे संतां ने कहने गुरु चरणा में आप सच्ची सरकार के चरणा में आप सारे पंचायत के रूप में कहो जी वचन कहे कबीर सुनो रे संतो बेनती करो मेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुत न भक्तन मेरा। कहो सारे अब की बार बख्श बंदे को बहुत न भक्तन मेरा। एक सोहदे साहब की बाणी में तो पढ़ लिए कहो सारे संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल
देहो सजन पसीसरियां जो होवे साहिब स्नो देहो सजन पसीसरियां जो होवे साहिब स्नो ले कितनी व्यंत पुना दुनिया सतगुरु जी के संतन बख्शन जो बख्श लेना अनजान माफ करना और छे पौड़ियां अपना साहब जी के जाप आप सारे रल के करने हैं किसी भी रसना मन राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सैन सिद्धि मर्म जिया बताया शब्द का बड़े शब्दों तक मुखरी मेरा मन जिनी बसाया मन मेरे अब सदा रहो बरनाले अल्लाह मन मेरे सत विसार अंगीकार करे तेरा काज सब द्वारा स्वामी सुखनो विसारे कहना मन मेरे सदा रहो बरनाले सारी बात ज्ञान करते पता तेरे से नाम मन सारे नाम जन मन से अवधि शब्द कलिए सच्चे सारे ज्ञान करते सतनाम माता गुरबीर कौर जी वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी दिनों की याद के विच वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी आप जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर रब्बी गुरबाणी के कीर्तन होए कीर्तन करदियां संत पुना हो जमदियां जी बख्शण योग बख्श लेना कृपा करनी बख्शियां हुई दातां के विचों कड़ा प्रसाद की देख सज के तैयार परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो जिन्हां भंडारियां विचों कड़ा प्रसाद की देख सज के तैयार सो भंडारे भरपूर करने
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਕਟਾ ਤਨ ਸੀਜੈ ਕਾਲ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਵ ਕਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ ਕਾਲ ਆਹੇਰੇ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਰਹਾਉ ਜਪ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਪੂਜੈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੋਟੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੋਟੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰ ਹੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप सब जानते ही हो कि माता जी संकेत जी बीमारी तो साढ़े को विदा हो गए। पिछली 11 तरीक को उन्होंने पहला हार्ट अटैक आया, उस तो बाद वो ठीक होके घर भी आ गए तो 18 तरीक को दोबारा उस नाम वाली ने साढ़े को माता जी ने परा कर दिया। आप सब जानते हो कि ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2005 ਚ इस परिवार चो साडे बड़े भाभी सदा नहीं विछड़ गए ते माता जी की अंकल साडे चरण सिंह उन्होंने प्रेरणा नाल उन्होंने दोबारा वो छोटे छोटे बच्चों ने मुड़ लिया के पा के उन्होंने पढ़ा लिखा के अज तुसीं सारे जानते हो कि जो उन्होंने अपनी माता ने सारी कबीलदारी क्योट ली सी, बच्चे दोने विआहते सी, चारे भैणां भी साडियां दोने वीरे भी, ते उस तो बाद माता के सिर फिर वो बच्चों को पालन की जिम्मेवारी जो सी जो उन्होंने बड़ी बखूबी निभा के ते उन्होंने बच्चों को पढ़ाई से करके अज बच्चे तुसीं जानते हो कि विदेश से सैट ने। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा
ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਰ ਉਧਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੈਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ना जाने क्यों रेत की तरह हाथों से निकल जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी भर कभी होना नहीं चाहते। ये माँ प्यो साडे सिर ते साडे वास्ते इस परम पिता परमात्मा की भी एक ऐसी अनमोली देन है जिहदा असीं मुल नहीं ला सकते। लेकिन गुरु महाराज जी जिस तरह सानू सिक्ख्या दिंदे ने, जिस तरह सानू आखते हैं कि जिहा जिने लिखा तिहा हुक्म पाया, कल्ले अपनी श्वासां की माला, श्वासां की पूंजी ने इस पानी संसार में एक धी तो लैके एक भैन बन के, एक पत्नी बन के, एक माँ बन के, एक दादी बन के, एक नानी बन के, अपने सारे तरह के ही पाठ अदा करके इस पानी संसार के विचों साडी ये ममता में माँ उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विराजमान होते जितों की अज तक वापस नहीं आती। लेकिन ये माँ का कर्जा असीं ला नहीं सकते, इसकी प्यार का बदला असीं ला नहीं सकते। जदों भी कमलजीत जी अपनी माँ के उस प्रतिबंध के मुड़े बैठेंगे तो उन्होंने शायद एक गल याद जरूर आएगी कि हो सके तो लौट आओ माँ, तेरी याद हमें भूल सकती, लेकिन जो उस जोत के बीच जोत बन के सम्मिलित हो गए हैं वो शायद नहीं आएंगे। लेकिन असी परम पिता परमात्मा के चरणों के यही अरदास बेनती करते हैं कि साढ़े उस ममता में मां अपने चरणों के विराजमान कर, मगर साढ़े भाई साहब कमलजीत जी आदरणीय बाबू उन्होंने इहो जिहा हौसला दें ताकि वो अपने इस परिवार को संभाल सकन। मैं अपने वालों म्यूनसिपल कौंसल नकोदर वालों एसोसीएशन अलायंस क्लब्स ऑफ इंटरनेशनल वालों मैं परम पिता परमात्मा के चरणों के अरदास बेनती करता कि इस पिछड़े रूह अपने चरणों के निवास दें तो मगर इस परिवार को आना करनैल सिंह फ्लोर अध्यापक आगू वो मंच से आउण। असी चाहते सी कि प्रिंसीपल केवल सिंह सैदपुर जी उन्होंने को भी इस वक्त 2 मिनट उन्होंने भी सुनते, पर उन्होंने शरीरक समर्था कहते मेरी नहीं बन रही, मुश्किल है खड़े होने से, इस करके उन्होंने हाजरी प्रमाण करियो। करनैल सिंह फ्लोर जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजरी में मौजूद साथ संगत जी, एक माँ का चले जाना, पिछड़ जाना बहुत बड़ी घटना होती है। सियाने कहते जी परिवार में बच्चा साडा जिहड़ा है वो चले जाने समझ लो थोड़ी खुशियां जिहड़ियां वो चले गए। जे परिवार का नौजवान साडे कोलों पिछड़ जाए असीं समझते साडे परिवार जिहड़ी कमजोरी है वो चले जाए। जे बजुर्ग साडे पिछे चले जाए असीं समझते साडे परिवार का जिहड़ा सलाम है वो साडे कोलों फस गया। सचमुच ही अज मेरे योद्ध साथी कमलजीत जी
ਸਾਡੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਮਾਂ ਦਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ, ਕਿੰਨਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਧਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਧਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੈ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਡੀਯੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਭਗ 2 ਵਜ ਚੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੰਪੋਜ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਕੋਦਰ, ਆਵਜੀਤ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿੱਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਬੈਠਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ
उसने अगे किहो जिहा बनना है, किहो जिहा भांडा उन्हें तराशा है, वो मां से निर्भर करता है। एक ना जो भांडा साढ़े पास भी है सरदार कमलजीत सिंह जी, वो जो माता जी के दुख मैं मिलिया तो नहीं, पर कमलजीत सिंह होरन देख के ही पता लग जाता है भी माता जी के गुण किहो जिहे होणगे। अजकल लोग जिहड़े अपने निजी कामों वास्ते लड़ते हैं, निजी कामों वास्ते जमीनां जायदादां वास्ते लड़ते हैं, लोगों पिछे निजी कामों दे विच साथी कमलजीत सिंह जी जो कि साडे स्टेट के बड़े आगू हैं, गवर्नमेंट यूनियन के फेडरेशन के भी, वो सारा कुछ उन्होंने जिंदगी का हुण तक लोगों पिछे अर्पण कर दिता। तुम देखोगे जिथे भी धरना होया तो पहुँच जाते हैं, भावें कितने FIR दर्ज होनी है, डांगा होनी है, विछाड़ा पैनिया, ये उत्थे पैंदे हैं, इन्हां पिछे लोगों पिछे लड़ते हैं। ये जिहड़ी शिक्षा है मेरे ख्याल माता जी तो बगैर हो ही नहीं सकती कि माता उन्होंने यही शिक्षा ना दे, नहीं तो माता शिक्षा तैं की लेना बेटा, वो घर बैठा करें आराम नाल बैठ के। तो मां का प्यार तो वध कोई दे नहीं सकता। ये कला वर्तारा मनुख में ही नहीं, पशु पंछी जानवरों भी है। एक छोटी मुर्गी होंगी है, उसका बिल्ली नाल कोई मुकाबला नहीं। बिल्ली तो चूचे को आगे देखे, वो ही जी मुर्गी है उसके बिल्ली के झक के पै जाएगी। अपने बच्चे को कदे माता अपनी जान दे के भी बचाती है। ये तुम कहो असं तो माता का बड़ी सेवा कर ली, फर्ज उतार दिया, बिल्कुल गलत। तुम माता का फर्ज उतार ही नहीं सकते। जो माता ने किया है वो तो एक दिन का फर्ज भी नहीं कर सकते। जो खिलाफ पैदा हो गया सू 11 तरीक को पता लगे शाम के, तो फिर मैं सानू ही पता से कमलजीत सिंह का बहुत प्यार करना माता जी ने। फेसबुक से देखते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने फोटो आनिया। फिर सू पता लगे कि जो हार्ट अटैक आया, बात इंफॉर्मेशन रही काम जो भी चलना है, वो कहते ठीक हो गए, पर होनी कुछ और ही मंजूर थी। तो असी परमात्मा के बेनती करते हैं कि माता गुरु साहब अपने चरणों में निवास रखें। फिर मैं दोबारा अपने यूनियन फेडरेशन वालों माता जी ने श्रद्धांजलि भेंट कर। जिथे सोता साहब ने कमलजीत के गुणों की गल की, वो गुण उस तरह गांव भी प्रवर्तित हुए। माता के 2 पोतरियां से उन्होंने भी कनेडा बैठे सोचा कि साडे पिंड के जिहड़े प्राइमरी स्कूल से नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने वास्ते बिजली जो चल जाती है, कोई पक्षियों का प्रबंध नहीं। 2 बच्चों ने कनेडा चो रुपने के हर्ष ने प्राइमरी स्कूल को जनरेटर भेंट किया। असी सोचते हैं कि ये चंगे गुण ही है जो पीढ़ी तक पीढ़ी अगे जा रहे हैं। तो परिवार ने उत्थे अपने वालों GTU पंजाब लोक लहर को सीटू पंजाब सर्टिफिकेट सर्विस फेडरेशन को भी दिलफुल भेंट किया। जिहड़े भी साथी आगू आए ने वो कमलजीत जो वो राशि जरूर प्राप्त कर रहे। हुण मैं बेनती करांगा कुलविंदर सिंह जोसफ जी प्रधान PDF जिला जलंधर जी वो स्टेज पे आउण। उस तो बाद सुरेंद्र कंबोज जी वो भी 2 मिनट मंच पे जरूर अपनी हाजिरी पाउण। सुरेंद्र कंबोज जी हुण का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम मैं थोड़ा ही लूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये सारे रिश्ता के लोग का ही साथ है। आप सारे जने माता कुलबीर कौर नूं श्रद्धा के फुल भेंट करते आया, क्योंकि मेरा इस परिवार का 1994 तो संबंध है, जो मैं कमलजीत कट्ठे लोग जाए। क्योंकि मास्टर चरण सिंह हुणी इन्हों का साडे गुरिया एरिए का बहुत बुरा संबंध है।
क्योंकि जगोपुर कौर ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਮੈਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਦਰਾਮਾਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮਲਜੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ TDF ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਪਈ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਮਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਥਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਉਧਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਛਕਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਭੈਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਮਰਦੀ, ਬਾਪ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਰਦੀ, ਬਾਪ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਰਦੀ, ਮਾਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਮਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਉਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋੜੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਕਮਲਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੀ, ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਭਾਰਤੀਆ ਜੀ, ਐਂਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਟੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ CPM ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਛੁਡਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਸਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਤਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਜੀ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਟਾਰਿਓ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
मौत तक के विचकार के समय में जिंदगी किया जाए उस जिंदगी जीवन इंसान को कई रिश्ते नाते जुड़े उन्हें रिश्ते नात्या निभाने साडियां सोचां बनदियां काम बनते कोई एक जिंदगी का लक्ष्य बन जाता कोई एक जिंदगी के लक्ष्य से लकीरां बन के उभर जांदियां ते जदों इंसान जाता वो मिटियां जाता असीं विचार उन्हां दे चंगे हुण भी रो लैंदे आ कि किन्ने साडे रिश्ते हो चुके हुए जीवन के नाल नेड़े ते हुंदे आ उन्ना ही ज़्यादा विराग हुंदा ते वो विराग के साडियां अखां विच निकलदा बच्चों का मां तो सिर का छाया चली जाती जीवन साथी का चली जाती बड़ी वड्डी घाट होती है कि बच्चों को पालिया जोड़ियां दित्तियां ते जदों धी जिहड़ी आ वो मापियां दे घर होती है ते मां जो घर में नहीं मिलती भावें मौजूद परिवार होंदा वो घर एक सुना लगता क्यों उसके ਵਿੱਚ मां का प्यार नहीं रहा होगा मां का जोड़ा बेटे का कंधा करके करेगा बड़ी वड्डी घटना होती है ते मां के बारे से बड़ा कुछ दिखाई मैंने दिखा मां बच्चे का नूर बनाने अपना नूर खोना से बच्चे की पालना पोसना किसी नाल से करके सही हो सुखे नाल से खोना किसी बूटे की पछाण वो खुलना सिखाना अज रोज बीबी की भतीजी तो सानू वो पछाण आ जिन्हें कमलजीत बन के साडियां भैणां बन के इन्हां मेहनत करवा के इस समाज के चुनते हैं जो गल असीं आज की करांगे जिहड़ा सदका ढंग दे नाल अपनी नौकरी की ड्यूटी की ते उहदे मगर बड़ा हक वड्डा पैंदा कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता उहदे मगर दौड़दा क्योंकि वो बाहर सी ड्यूटी देनी ये बच्चों की परवरिश करनी टाइम से उन्हें फुलका पका के देना तो ताई मेरा तो ये घालना जड़ियाँ मारियां नहीं दिखाई जा सकती साहब श्री गुरु नानक देव जी ने माता में गुरबाणी का बहुत कुछ लिखा पीर कंबल और ये सब चलती स्वर्ग की शान तो पता नहीं देखी कि नहीं पर मां की शान का लिख दिखाने वाला जिन्हें मारिया वो भी मिट्टी आ दुनिया के सारे बूटे जड़ छुट्टियां घुमया करते वो मां का बूटा जो फुल पकड़ा है क्योंकि मां का बच्चे नाल प्यार ही इतना होता तो जिन्हों का इतना प्यार हटाया होगी वो छाया चले जानी तो परिवार सुभाव के तौर पर बड़ी बड़े घर वाली गल होती बड़े सत्य वाली गल होती है फिर अभी उस गुरु महाराज की चर्चा अरदास बेनतियां नहीं कर सकते फिर साढ़े ग्रंथी पिता ने एक गल कही भी किते 5 मिनट मां की पैर से बैठे लाते दोन गल भी तो बड़ी मिट्टी आ पर यकीन वो ही बना सकता जिसे सट बुलानी हुई मां भी नीति रहती है जो यकीन मर जाए तो पुत के मन में भी शांति आती है साढ़े बच्चे विदेशों में गए हुए सारे ने वो सारे पुछते हैं भी काका डॉलर कितने कमाए एक मां पुछती है पुत रोटी खाती ये बरकता मां की क्या मिलती है तो इस प्रकार को छापिया कि तुम सारे पंजाब के सारे लीडर साढ़े पिंड में चले इस समाज के दुख के शहीद बने सारे परिवार वालों भी नगर वालों भी तुम जी बहुत बहुत धन्यवाद हो सके असी करिया होवे साहब से होएड़ा संत में महाराज के चरणों की रही कि उस पिछली गुरु अपने चरणों से समर्पित की परिवार को भाना मनन का बहुत